Today we will study centrifugal pumps. Okay, so what is centrifugal pump? The hydraulic machine which converts the mechanical energy into hydraulic energy are called the pumps. Or we can say that pumps are the opposite to turbines. In turbines, in the conversion of mechanical to hydraulic. In turbines, hydraulic to mechanical, whereas in pumps, mechanical energy into hydraulic energy. The centrifugal pump acts as a reverse of an inward flow reaction turbine. Inward flow reaction turbine. It means entry of the water is the radial. Entry of water is radial. Okay. Now the main parts of the centrifugal pumps: impeller, casing, suction delivery pipe. So now see the main diagram. It shows the centrifugal pump. Here it is suction pipe. This is delivery pipe. This is casing, impeller, and impeller is connected to the electric motor. With the help of electric motor, we provide mechanical energy, and by that mechanical energy, the impeller of the pump will rotate, and a centrifugal force, and due to this centrifuge is generated, and due to this centrifugal force, water is being lifted from suction pipe to delivery pipe. Okay, now we will discuss the velocity triangle, work done by the centrifugal pump on the water. So जैसा कि टरबाइन में हमने देखा था, टरबाइन में हम कैलकुलेट करते थे वर्क डन बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन द टरबाइन, और उसी के जस्ट अपोजिट इन पंप्स वी विल कैलकुलेट वर्क डन बाय द इम्पेलर ऑन द वाटर, बिकॉज इम्पेलर में हम कौन सी एनर्जी प्रूफ दे रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से. तो देखेंगे ज़रा हम डिटेल में. यहाँ पे दिस इज इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, दिस इज आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल. This is inward radial flow. It means the jet of water entry is radial direction. It means the angle alpha is 90 degree. Angle alpha is 90 degree here. So V1 velocity of jet, U1 blade velocity, VR1 relative velocity at inlet. Now this jet will come outside through this blade, and here V2 outside velocity of the jet, U2 blade velocity at exit, VW2 velocity of whirl, or we can say that the horizontal component of jet velocity. VW2 is velocity of whirl, or horizontal component of V2, and VF2 velocity of flow, and this VF2 is the vertical component of velocity of jet, and this is VR2 relative velocity at exit. Now we will let us assume n speed, d1 diameter of impeller at inlet, u1 tangential velocity. Now u1 टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई d1n अपॉन 60. सिमिलरली लेट अस एज्यूम d2 डायमीटर एट ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट, u2 टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इम्पेलर एट आउटलेट. सिमिलरली u2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पाई d2n अपॉन 60. अल्फा एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 at inlet with the direction of motion of the vane, theta angle made by relative velocity VR1
at inlet with the direction of motion of the वेन। जैसा कि हमने बताया इनवर्ड रेडियल फ्लो है तो अल्फा 90 डिग्री। जब अल्फा 90 डिग्री है तो VW1 जो V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि V1 sin 90 इज जीरो, cos 90 0. A centrifugal pump is the reverse of radial inward flow reaction turbine, but in case of radially inward flow reaction turbine the work done by the water is given। पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बाय यूजिंग दैट मोमेंटम इक्वेशन we will calculate work done 1 upon g VW1 U1 minus VW2 U2। वर्क डन पर यूनिट वेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, वेट वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, पंप है तो अपोजिट हो जाएगा हमारा। ये टरबाइन के केस में हमने कैलकुलेट किया था। पंप के केस में अपोजिट मीन्स नेगेटिव साइन हम कर देंगे। देन नेगेटिव साइन में VW1 जीरो है तो फाइनल जो हमारा वर्क डन होगा बाय द इम्पेलर ऑन द वाटर दैट विल बी हाफ VW2 U2 एंड वर्क डन बाय द इम्पेलर पर सेकेंड W upon G VW2 and U2 and where W is weight of water। weight of water कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, रो जी क्यू एंड क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया सर्कुलर इम्पेलर है तो एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पूरा, पाई डी इंटू B1 उसकी विड्थ, पाई डी इंटू B1 पेरीमीटर इंटू विड्थ, तो एरिया हो गया VF1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सिमिलरली डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट होगा चाहे हम इनलेट पे कैलकुलेट करें या फिर हम आउटलेट पे कैलकुलेट करें। V1 B2 आर द विड्थ ऑफ इम्पेलर एट इनलेट एंड आउटलेट। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट हेड्स एंड इफिशियंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सबसे पहले हम सक्शन हेड की बात करते हैं। इट इज़ द vertical height of the center line of the centrifugal pump above the water surface in the tank or pump from which water is to be lifted as shown in figure 19.1। यानी कि सक्शन हेड की अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिए HS से डिनोट किया हुआ है, वाटर लेवल एंड इम्पेलर, दिस इज सक्शन हेड। नो अब हम बात करेंगे डिलीवरी हेड की। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द पंप and the water is in the tank to which water is delivered is known as delivery head। ये देखेंगे delivery head, here it is delivery head। तो सक्शन हेड क्या हो जाएगा हमारा, टोटल स्टैटिक हेड, सम ऑफ द सक्शन हेड डिलीवरी हेड इज नोन एज स्टैटिक हेड। अब मैनोमेट्रिक हेड हमें कैलकुलेट करना है। Manometric head is defined as the head against which a centrifugal pump has to work। It is denoted by HM and it is, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, head imparted by the impeller to the water minus loss of head in the pump। कितना मोटर की हेल्प से जो इम्पेलर ने वाटर पे स्ट्राइक किया और बीच में लॉस कितना है हमारा, तो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। हेड इम्पार्टेड माइनस लॉस ऑफ इम्पेलर इन केसिंग, इफ लॉस इज जीरो देन टोटल हेड। एक और तरीका है निकालने का, टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ द पंप एंड टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पंप। तो टोटल हेड में कौन कौन से, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड एट आउटलेट एंड प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड एट इनलेट, दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर दें, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दें एंड दिस इज। एंड थर्ड जो वे है उसको कैलकुलेट करने का, HM को सक्शन हेड, डिलीवरी हेड एंड फ्रिक्शन सक्शन पे एंड फ्रिक्शन इन डिलीवरी पाइप एंड देन लास्टली काइनेटिक हेड, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन डिलीवरी पाइप।
अब हम एफिशिएंसी की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की देयर आर 3 टाइप ऑफ एफिशिएंसी: मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी. Manometric efficiency, the ratio of manometric head and head imparted by the impeller to the water. Manometric head यानी कि उसमें से जो इम्पार्टेड में से लॉस को हमने माइनस किया हुआ है. तो मैनोमेट्रिक हेड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पहले देख चुके हैं. देर आर 3 वेज टू कैलकुलेट द मैनोमेट्रिक हेड. एंड हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर, जो हमने वर्क डन 1/G VW1 जो फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, VW2 तो HM VW2 तो दिस इज द मैनोमेट्रिक efficiency. Power at the impeller of the pump is more than the power given to the water at the outlet of the pump. The ratio of power given to the water at outlet of the pump to power available at the impeller is known as manometric efficiency. तो ये वे हमने कैलकुलेट कर लिया. एक वो सिंपल वे था एंड सेकंड वे दिस इज. अब हम अगर बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की, तो पावर एट द इम्पेलर एंड पावर एट द शाफ्ट. पावर एट द इम्पेलर कौन से हैं, जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है, W/G VW2 एंड पावर एट द शाफ्ट यानी कि जो मैकेनिकल पावर जो इलेक्ट्रिक मोटर में शाफ्ट से इम्पेलर पे मिल रही है, वो शाफ्ट की पावर, वो हम शाफ्ट पे कैलकुलेट करेंगे. देन वी विल सी ओवरऑल इफिशिएंसी. एंड ओवरऑल इफिशिएंसी क्या होती है, वेट ऑफ द वाटर लिफ्टेड, पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट ऑफ द पंप. तो पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो वेट ऑफ द वाटर लिफ्टेड इनटू मैनोमेट्रिक हेड अपॉन में 1000. दिस इज पावर इनपुट, सॉफ्ट पावर है पावर इनपुट. दिस इज ओवरऑल इफिशिएंसी को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कह सकते हैं. तो ये हमारा ओवरऑल सेंट्रीफ्यूगल पंप था, जिसमें हमने डिस्कस किया मेन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के पार्ट्स विद डायग्राम. देन हमने डिस्कस किया उसका वर्क डन, वेलोसिटी ट्रायंगल, इनवर्ड रेडियल फ्लो है, अल्फा 90 डिग्री है. उसके बाद हमने वर्क डन कैलकुलेट किया बाय यूजिंग टर्बाइंस इक्वेशन. टर्बाइन भी इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन था. उसकी इक्वेशन जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूज़ करके जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था, उसकी हेल्प से हमने उसको नेगेटिव साइन करके पंप का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया. देन हमने डिफरेंट हेड्स जो यूज होते हैं वो डिस्कस किया. देन डिफरेंट इफिशियंसीज. इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल पंप. ओके, गुड बाय.